Good morning, everybody. My name is Rakesh Kumar. I'm your Institute Tutor for Advanced Taxation UK-based paper of Finance Act 20 paper. This is applicable from your paper for quarter from June onwards, June 2021. So let's talk about the syllabus. Syllabus is like a table of content for the corporation tax, then CGT capital gain, corporation tax. Yeah, this is the corporation tax. Then here for the capital gain, then here for the inherent tax, right? Then आपको है income tax, that's personal tax, like income tax. You already cover in taxation paper F6. Then property income, employment income related pension. Then overseas aspect, new ongoing incorporated business, मतलब ये क्या है amalgamation. Then VAT, ये क्या है आपका कंपनी के लिए ओवरसीज एस्पेक्ट ऑफ इनकम एंड कैपिटल गेन टैक्स. ये क्या है आपका दोनों का इंडिविजुअल का, और यहाँ पे क्या है कंपनी के लिए, ये क्या है कंपनी का टैक्स. तो ये सारे टॉपिक आपने कवर अप करने हैं. देन हाउ टू यूज द मटेरियल आपको दिया है, हम यूज करें हैं कार्बन का मटेरियल. The aim of ACC Advanced Taxation is to apply relevant knowledge and skill and exercise professional judgment in providing a relevant information advice to individuals and business in the impact of major taxes on financial decision situation. Main capability क्या है आपको कि आपकी apply further knowledge and understanding of UK tax system through the study of more advanced topic within the tax studied previously. Previously आपने क्या किया था, टैक्स किया था. अब ये क्या है आपका एडवांस टैक्स है. Identify and evaluate the impact of relevant taxes on various situations and course of action including the inherent tax. Provide advice on minimizing and deferring tax liability by use of standard tax planning measures. Communicate with the client, HM, revenue and custom and other professionals in an appropriate manner. कि आपको क्या करनी है, कम्युनिकेट करना है. कम्युनिकेट करना कैसे कि अगर कोई केस लग गया है या कुछ है तो उसके लिए आपको क्या करनी है, अपील करनी. एसी से परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव आगे है आपको पीईआर कैसे कवर अप करने हैं. यहाँ पे आपके 4 पीईआर. इस एटीएक्स में आप कितने कवर अप कर सकते हैं, 4 पीईआर अपने कंप्लीट कर सकते हैं. दूसरा है पेपर पैटर्न. पेपर पैटर्न देख लेते हैं एक बार. ये तो आपको सिलेबस दिया है. सिलेबस में क्या है, सिलेबस लर्निंग द ऑब्जेक्टिव chapter reference knowledge and understanding of UK tax system throughout the study of more advanced topic within the tax study previously. कि ये कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको. एक तो क्या दे सकते हैं टैक्स, जो प्रीवियस आपने F6 जो नॉलेज बेस पढ़ा, नॉलेज प्लस स्किल बेस पढ़ा है, प्लस उसके एडवांस टैक्स, दोनों का ही सिलेबस आपको कवर अप करना है. द कंटेंट ऑफ टैक्सेशन यूनाइटेड किंगडम स्टडी गाइड फॉर इनकम टैक्स एंड नेशनल इंश्योरेंस अंडर हेडिंग the scope of income tax, B2 income from employment, income from self-employment, property and investment income, comprehensive computation taxable income and the income tax liability, national insurance, the use of exemption and relief in defining minimum income tax liability.
तो इन शॉर्ट आपका जो बेसिक नॉलेज था F6 या टैक्सेशन पेपर का, वो भी कैरी फॉरवर्ड किया गया है। उसमें से भी आपको बेसिक नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द फॉलोइंग एडिशनल मटेरियल इज आल्सो एग्जामिन द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स, explain the applying the concept of residence, domicile and the deemed domicile advice on relevance to income tax, advice on availability of remittance basis to UK residence individual, advice on tax position of individual coming to and leaving the UK। तो आपको ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ये आपके पेपर बुक के फ्रंट पेज पे दिए हुए हैं। देन आपको क्या करना है, चार्जेबल गेन, ये सारा पिछला कवर अप है आपका F6 वाला पेपर। Then level 1 knowledge and comprehensive bodily fluid with the applied knowledge level, level 2 with the applied skill level, level 3 is a strategic professional level. However, lower level skill can continue to be assessed as you progress through each level। कि आपको टैक्सेशन के पेपर के भी सिलेबस के बारे में पूछा जा सकता है। The examination format, the exam consists of two sections. Section A consists two compulsory case study question. Question 1 has a 35 marks including the 4 marks professional। कि आपको प्रेजेंटेशन के कितने मार्क्स इसमें मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे प्रेजेंटेशन के, right? Then question 2 has a 25 marks. There will be also a 5 ethics marks including with this section। इसमें ethics और प्रोफेशनलिज्म के कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 5 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल जो सेक्शन ए है वो उसके कितने का है, 60 मार्क्स का है। सेक्शन ए जो है वो 60 मार्क्स का है ऑब्वियसली। देन सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 2 कंपल्सरी 20 मार्क क्वेश्चन कवरिंग बोथ बिजनेस एंड पर्सनल टैक्स इशू। कि इसमें क्या है, 1 क्वेश्चन आएगा, एक तो आएगा पर्सनल टैक्स पे यानी कि इनकम टैक्स पे और NIC पेंशन व्हाटएवर इंक्लूड, और दूसरा क्या है बिजनेस टैक्स पे यानी कि कॉर्पोरेशन टैक्स पे। तो दोनों के ही 20 मार्क के ईच क्वेश्चन होंगे। द क्वेश्चन विल सिनेरियो बेस्ड एंड मे इन्वॉल्व कंसिडरेशन ऑफ मोर देन वन टैक्स, सम एलिमेंट ऑफ प्लानिंग एंड इंटरेक्शन ऑफ टैक्स रेट अलाउंस एंड इंफॉर्मेशन सर्टेन लिस्ट विल बी गिवन इन द एग्जाम। कि नॉर्मली आपको क्या होगा कि ये टैक्स रेट गिवन होंगे एग्जाम में, तो आपको रिमाइंड करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आई थिंक टैक्स रेट आपको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है, आपको अवेलेबल होगा एग्जाम में। यहाँ पे 2 कंपल्सरी। फर्स्ट सेक्शन ए है 60 मार्क का, 100 मार्क का टोटल है, 13 आवर 15 मिनट का। पेपर का जो पैटर्न है वो CBE कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। फ्रॉम मार्च 2020 onward, I think, in India। The pass mark is still 50% from March 2020 computer। Oh sorry, यहाँ पे आपको 20 से ही मार्च से हो गया था CBE बेस। In selection location study profession CBE will extend to other location over time। Yes, कि जो इंडिया से बाहर है वो क्या हो गया था, CBA 20 में हो गया था, बट जो इंडिया में हुआ था वो आई थिंक मार्च 2021 में CBE फॉर्मेट हो गया था फॉर प्रोफेशनल पेपर। कि अब आपको रिटर्न नहीं देना है, आपको कंप्यूटर बेस्ड ही पेपर देना है।
The study taxi appears for both CB and paper-based exam. It is essential that the student who will be sitting the CB become familiar with the CB environment as part of the examination paper. अगर आपने टेक्स्ट का पेपर लास्ट दिया होगा वो क्या था, सीबी बेस था, वैसा ही पेपर आएगा बट थोड़ा सा एडवांस है। आगे वही है कि डिवाइड द टाइम यू स्पेंड ऑन द क्वेश्चन, 1.8 टाइम, 20 मार्क की क्वेश्चन टेक 36 मिनट। ये सारी चीजें क्या है, सारी इंफॉर्मेशन क्या है, कॉमन है फॉर ऑल पेपर। आगे आपको पूछा जा सकता है रिपोर्ट का फॉर्मेट। क्या आपको रिपोर्ट, इफ यू आर आस्क्ड टू राइट अ रिपोर्ट इन एग्जाम यू शुड सेट अप एज शोन बिलो। कि आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट रिमाइंड रखना पड़ेगा, रिपोर्ट का फॉर्मेट टू मिस्टर दुबे टैक्स एडवाइजर डेट, ये सारा रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको रिमाइंड करना पड़ेगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपको रिपोर्ट देनी। ये डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। देन आगे आपको दिया है टैक्स रेट एंड अनाउंस। नो डाउट आपका वो टैक्सेशन वाला ही है बट आपको एग्जाम में गिवन होगा, एग्जाम में गिवन होगा ये टैक्स रेट गिवन। वो कॉमन है, इनकम टैक्स की स्लैब दी है, बेसिक रेट, हायर रेट एंड एडिशनल रेट। आगे आपको दिया है रेजिडेंस स्टेटस कैसे चेक करना है वो। तो ये सारी चीजें आपकी बेसिक टैक्सेशन के पेपर की रिवीजन है आपकी, वो आपको कवर अप करना है। देन आपको एडवांस टैक्स करना है। Okay, let's start chapter 1 here. The chapter 1 corporation tax computation and administration. Chapter learning objective है identifying evaluate the significance of accounting period on administration और winding up। कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे, accounting period। Then prepare the corporation tax computation liability for UK resident company, define the rate at 51% group, यानी कि क्या है ये सब्सिडरी की बात कर रहे हैं। And recognize the effect of corporation tax, state when corporation tax is due for non-large company and define a large company, explain how they are required to pay corporation tax। कि इनकी टैक्स पे करने की हमें वो डेट बतानी है, ड्यू डेट बतानी है according to their limits. Understand and explain the impact of taxation on the cash flow of a business. Explain the principle of company self-assessment. तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। Let's start here. Corporation tax liability accounting period. Here, introduction. This is the following two chapters deal with the way in which company is subject to corporation tax. This chapter set out the basis of assessment, explain how a company corporation tax liability is calculated. Much of this chapter is a revision of a rule covering tax, यानी कि आपका F6 की revision के बेस पे भी ये पेपर। Corporation tax computation basis of assessment. UK resident company are assessed to corporation tax on their taxable profit (TTP) arising on the accounting period. UK resident company कौन सी होती है? UK resident company होती है या तो वो क्या हो, यूके में रजिस्टर हो, यूके में रजिस्टर हो कंपनी, बट इन केस अगर वो ओवरसीज में हो तो उसका कंट्रोल क्या हो, कंट्रोल एंड मैनेज बाय यूके। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कंट्रोल एंड मैनेज बाय यूके, तो भी क्या है यूके रेवेन्यू कंपनी
तो TTP income excluding dividend received plus net chargeable gain less qualified charitable donation QCD. Accounting period AP, the period for which a charge to the corporation tax is made, usually 12 months and the same as the company period of account, कि वो सेम कंपनी के पीरियड काउंट के बराबर होता है, कैन बी लेस देन 12 मंथ, sorry, can be less than 12 months in case when you commencing your business mid of year, when you start your business mid of the year, cannot exceed 12 months, कि हम अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ से ज्यादा नहीं ले सकते. नो, द कंपनी पीरियड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड फॉर विच द कंपनी prepares financial statement it is usually 12 months but can be shorter or longer than the 12 month, कि यूजुअली तो 12 मंथ का होता है बट वो क्या 12 महीने से कम या 12 महीने से ज्यादा का हो सकता है. इफ द कंपनी पीरियड ऑफ अकाउंट exceeds 12 months it must be split into two corporation tax AP, कि आपको अगर 12 मंथ से एक्सीड का पीरियड है, सपोज तो 18 मंथ का है, तो आपने इसको डिवाइड करना है फर्स्ट 12 मंथ फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम बिजनेस टू ईयर एंड और देन रिमेनिंग 6 मंथ, कि आपको अपने इसको स्प्लिट करना है 18 मंथ को, followed by the balance of period account short AP and AP start when the company start to trade, यानी कि अपने commencing business profit of the company first became liable to corporation tax or the previous AP end, कि आपका प्रॉफिट ऑफ कंपनी कैसे है कब लाइबल हो जाएगा, जब आपका the previous AP end, a new company must notify HMRC, कि आपको न्यू कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा need to inform HMRC. इसके लिए आपको क्या दिया है, विद इन 12 मंथ फॉर द एंड ऑफ पीरियड ऑफ अकाउंट, दिस इज अ सेपरेट ऑब्लिगेशन टू नोटिफाई HMRC ऑफ द chargeability to tax within 12 months from the end of its period of account, and AP end early of 12 months after it started, end of period of account when the company ceased to trade to UK resident or ceased to be liable to corporation tax, commences administration of winding up proceeding, कि अकाउंटिंग पीरियड वो एंड अर्लिएस्ट हो सकता है कि 12 मंथ आफ्टर इट स्टार्टेड द एंड ऑफ पीरियड ऑफ अकाउंट व्हेन द कंपनी सीज टू बी ट्रेड, और इसमें क्या है कि आपका जो कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड है वो 12 मंथ से कम हो सकता है. अकाउंटिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ इन दैट केस. आगे आपको दिखे इलस्ट्रेशन 1, एबी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड फर्स्ट 15 जुलाई, कि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कब किया, दिस इज योर बिजनेस स्टार्ट और commencing date and commenced to trade on 1st September. The company choose 30th June on accounting year, ये आपका क्या है, आप नॉर्मल ईयर एंड अपनी बुक्स जो क्लोज करते हैं, आप अपना अकाउंटिंग पीरियड देते हैं, वो बुक्स कंपाइल की डेट है, कंपाइलेशन, एंड prepared its first financial statement to 31st June 2021, कि आपने जो फर्स्ट ईयर एंड अपनी SOP बनाई है वो 35 एंड देन फॉर द 12 मंथ टू 30 जून, कि जो आपने अपनी पहली बैलेंस शीट बनाई है वो यहाँ तक बनाई है, फर्स्ट SOP, देन फर्दर SOP बनाई है सेकंड वाली, ये वाली फर्स्ट. स्टार्ट द डेट ऑफ एबी लिमिटेड फर्स्ट टू अकाउंटिंग पीरियड, फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड क्या है 1 सितंबर, यानी कि आपकी कमेंसमेंट डेट जहां से आपने
ट्रेडिंग स्टार्ट की कमेंसमेंट डेट टू ईयर एंड, बुक कंपाइलेंस जहां पे आपने सेकेंड एपी क्या है, 1 जुलाई टू 21 टू 30 जून, immediate after the end of previous AP until the end of period of account. Note: an AP does not start on the incorporation of company. Illustration 2. XYPLC has been trading for many years, preparing its financial statement to 30th of December year. The board of directors decided to change the year end to 30th April. कि नॉर्मली वो क्या करते हैं, अपने बुक्स को कहाँ पे बनाते हैं, ईयर एंड उनका 31 दिसंबर को हो जाता है, बट वो कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करना चाहते हैं, अपने ईयर एंड को चेंज करना चाहते हैं 30 अप्रैल तक. State the accounting period of XYPLC if it prepare one set of financial statement covering the 16 month to 30th April 2021. कि उन्होंने क्या किया कि जो SOFP है नॉर्मली 12 मंथ की होनी चाहिए, बट वो कंबाइन कितने हैं की है 16 मंथ की. तो आपको इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है, आपको स्प्लिट करना है 12 मंथ देन 4 मंथ. यहाँ पे क्या है, टू सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवरिंग द 4 मंथ टू 30th अप्रैल 2021 एंड 12 मंथ टू 22. तो दोनों केस में आपको करना क्या है, इफ वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कवर 16 मंथ, कि जो आपकी SOFP है वो कंबाइंड है, तो आपको क्या करना है, इट मस्ट बी डिवाइड इनटू 12 मंथ AP टू 31 दिसंबर 21. यानी कि आपका जो ईयर एंड था पहले अब वहां तक अपने रिपोर्टिंग करोगे, देन 4 मंथ AP टू 30 अप्रैल 2022. आपको दो पार्ट्स में करनी है. देन सेकंड ऑप्शन क्या है, इफ द टू सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड द AP विल बी सेम एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 4 month to 30th April and 12 month to 30th April 2021. Illustration 3. Accounting period on cessation. JW Limited has been trading for many years. With 30th June year end, due to the recent financial difficulty, it was decided that the company should be wound up. JW Limited ceased trading on 31st December 2019. On 30th April, the winding up commenced. The winding up was complete on 31st March 2021. Select the date of general accounting firm 1st April onward. Solution आपको गिवन है. 1 जुलाई में क्या है, क्योंकि आपने बिजनेस क्या किया है, सीज किया है, आपने वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू कर दिया है, आपने बिजनेस बंद कर दिया है. सोल्यूशन 1 जुलाई टू 31 दिसंबर ऑनवर्ड, कि आपने जब आपकी ट्रेडिंग सीज कर दी है, पहले आप बुक्स कब तक लिखोगे, पहले SOFP कब तक बनाओगे, जहां पे आपने अपना बिजनेस सीज कर दिया है. देन सेकंड, इमीडिएट आफ्टर द एंड ऑफ प्रीवियस AP अंटिल कमेंसिंग ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग, कि आपको जो देन आपको करना क्या है, जब आपका वाइंडिंग अप प्रोसीड नहीं होता, वही प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड अंटिल कंप्लीशन ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग. तो आपको कौन कौन सी SOFP 3 बनानी है, SOFP 1 2 देन 3 कंबाइन कर. द कंपनी नॉर्मल 30 जून एंड इग्नोर ड्यूरिंग द वाइंडिंग प्रोसेस, कि जब भी आप वाइंडिंग अप करोगे तो उनकी ईयर एंड को इग्नोर करेंगे. हाँ. Performer of corporation tax computation, name of the company, corporation tax computation for accounting period end आपको मेंशन करना है. देन आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, मिसलेनियस इनकम, नेट चार्जेबल गेन, देन टोटल प्रॉफिट माइनस क्या करोगे, क्वालिफाइड चैरिटेबल डोनेशन अमाउंट पेड इक्वल टू ग्रॉस अमाउंट. अगर इसमें कोई टैक्स करके वो नेट अमाउंट है, तो नेट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस में करना है. नेट कन्वर्ट प्लस टैक्सेस को कन्वर्ट किस में करना है, ग्रॉस में. टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट TTP
उस पे हमको कॉर्पोरेशन टैक्स हमको 19% है, लेस डबल टैक्सेशन रिसीव। अगर किसी जगह पे आपका डबल टैक्सेशन यानी कि किसी और कंट्री में ऑलरेडी टैक्स है तो उसको रिलीफ लेके कॉर्पोरेशन टैक्स पेबल की लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। आगे है ड्यू डेट 9 मंथ एंड 1 डे आफ्टर द एपी अनलेस लार्ज कंपनी विच पे इन इंस्टॉलमेंट, कि अगर आपकी जो लिमिट है, आपकी प्रॉफिट का लिमिट अगर 1.5 मिलियन से बिलो है तो आप क्या है, स्मॉल कंपनी है। अगर इससे अबव है तो क्या है, आप लार्ज कंपनी है। अगर स्मॉल कंपनी है तो आपकी ड्यू डेट क्या बनती है, 9 मंथ एंड 1 डे आफ्टर द एपी। अगर सपोज करो आप 31 मार्च को करते हो तो आपकी ड्यू डेट क्या बनती है, अप्रैल टू दिसंबर, ये 9 मंथ हुए। और 1 डे मतलब और 1 डे यानी कि 1 जन को आपकी ड्यू डेट बनती। देन फाइल डेट 12 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, कि जब भी आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है उसके 12 मंथ के बाद आपको रिटर्न फाइल करनी है। नोट्स ट्रेडिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट इनकम एंड प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉफिट इंक्लूड इनकम फ्रॉम ओवरसीज सोर्स। ऑल इनकम इज इंक्लूडेड इन कंप्यूटेशन ग्रोथ। QCD include all donation to charity by the company except those allowed as a trading instrument। QCD में हमको सारी डोनेशन लेनी है, सिर्फ वो वाली नहीं लेनी है जिनको कि हम अलाउबल करते हैं कि एक्सपेंस ट्रीट कर लें, कि जो ट्रेडिंग एक्सपेंस को ट्रीट करें। The detailed rules for the calculating TTP are in chapter 2, कि जो TTP टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट है वो चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो corporation tax liability, a company corporation tax liability is calculated by applying the appropriate rate of corporation tax to the company taxable total profit financial year। आगे आपको फाइनेंशियल रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स इज फिक्स्ड बाय द रेफरेंस टू फाइनेंशियल ईयर। ये लास्ट आई थिंक 19% चल रहा है। और फाइनेंशियल ईयर रन फ्रॉम 1st अप्रैल टू फॉलोइंग 31st मार्च एंड इडेंटिफाई द कैलेंडर ईयर इन व्हिच इट बिगेन द, कि जिस कैलेंडर ईयर में सपोज करो 1st अप्रैल 2020 है तो हम फाइनेंस एक्ट कौन सा ले रहे हैं, 2020 वाला। द ईयर कमेंसिंग ऑन 1st अप्रैल 2020 एंड up 31st March is a financial year 20। Financial year should not be confused with the tax year for personal, यानी कि हम इंडिविजुअल केस में करते हैं अपना टैक्स ईयर कौन सा लेते हैं, 6 अप्रैल to 5th April। The rate of incorporation tax applicable to financial year 20 is 19%। ये लास्ट 3 ईयर से सेम है, आपका 3 साल से लास्ट 3 ईयर not change। The rate of corporation tax are included in tax rate and allowances provided to you in the examination। Accounting period starting 31st March, when a company AP fall into 2 financial year, the corporation tax liability must be calculated for each financial year separately if either the following change: the corporation tax rate or the rule governing the calculation of corporation tax। However, as the rate of corporation tax has been the same for the last 4 financial years and the rules governing the calculation of corporation tax have not been changed, you will need to split the calculation of a corporation tax liability in ATX exam। पेमेंट ऑफ डेट, वही कॉर्पोरेशन टैक्स की पेमेंट कैसे करनी है फॉर कंपनी विच आर नॉट लार्ज, जिनकी वो थ्रेश लिमिट क्या है 1.5 मिलियन से बिलो है, तो उनको क्या करना है, ड्यू डेट क्या है 9 मंथ एंड 1 डे आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड सपोज करो यहाँ पे 30 जून को है तो आपको यहाँ से 9 मंथ 1 डे मिल जाता है कि आपको अपनी टैक्स वो है जमा करवाना। फॉर लार्ज कंपनी द लायबिलिटी इज सेटल्ड थ्रू द क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टार्टिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, कि जैसे ही आप अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 1.5 से प्रॉफिट मिलियन से ज़्यादा का प्रॉफिट है तो आपको क्या करने का, क्वार्टरली जमा करवाना है जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है। ऑल कंपनी मस्ट पे देयर कॉर्पोरेशन टैक्स इलेक्ट्रॉनिक, कि जो कंपनी है उनको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ही आपको टैक्स पे करना है। पेनल्टी फॉर द लेट पेमेंट आर कवर्ड इन सेक्शन 5। डेफिनेशन ऑफ लार्ज कंपनी दी है,
A large company is the one whose augment profit is for accounting year in question more than the profit threshold 1.5 million but not less than 20 million. या इसका लिमिट है, इसकी लिमिट क्या है 1.5 टू 20 मिलियन। इसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, लार्ज कंपनी कंसीडर कर रहे हैं। Company with the argument profit of no more than 1.5 million are not large, have therefore not required to pay corporation tax by installment। तो इनके लिए ड्यू डेट क्या है, वही सेम 9 month 1 day from end of accounting period। देन आपको परफॉर्मा दिया है, परफॉर्मा आर्गुमेंट प्रॉफिट के लिए कैसे कैलकुलेट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन ग्रुप कंपनी। नॉन ग्रुप कंपनी कौन सी है, जो आउटसाइडर है, यानी कि जो सब्सिडरी नहीं है, जो सब्सिडरीज हैं उनको नहीं, नॉन ग्रुप कंपनी। ग्रुप वाली कंसीडर करनी है। प्लस डिविडेंड रिसीव फ्रॉम नॉन ग्रुप कंपनी, इससे आर्गुमेंटेड प्रॉफिट निकालेंगे। इसको क्या इसको क्यों चेक करते हैं, क्योंकि थ्रेश होल्ड लिमिट को चेक करने के लिए। लिमिट्स कितनी है, 1.5 मिलियन। Dividend received, although dividend received from UK and overseas company are exempt from corporation tax, कि जो dividend received from UK and overseas company are exempt from corporation, they cannot be impact on whether company is a large and therefore the whether corporation tax need to be paid by installment। The amount of cash dividend received is added to CTP in order to add the argument profit figure। कि दोनों है, वैसे तो क्या है, डिविडेंड क्या है, एग्जाम्प्ट है पर्पस ऑफ एग्जाम्प्ट है फॉर द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स, बट प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए हम सिर्फ कंसीडर करेंगे द अमाउंट ऑफ कैश डिविडेंड रिसीव्ड एडेड टू टीपी ऑर्डर टू आय बाय द गवर्नमेंट प्रॉफिट। तो ये इसका मेन पर्पस क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट को चेक करने के लिए, थ्रेशोल्ड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम कर रहे हैं, दैट्स इट। और इसका कोई रेलेवेंट नहीं। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ओवरसीज कंपनी आर इंक्लूडेड बट दे मे बी have been subject to tax in overseas country and overseas tax suffered is ignored। Accordingly, only the actual cash received is included in this calculation in the same way as the UK dividend, कि जैसे कि आप UK dividend को कैलकुलेशन करते थे। Dividend received from related 51 group company see below are also ignored in calculation, कि जो ग्रुप वाली कंपनी है, ग्रुप कंपनी है या सब्सिडरी है, सब्सिडरी सब्सिडरी का क्या कहते हैं, सब्सिडरी जैसे सपोज तो एप्पल ने पिक्सल पिक्सल में शेयर लगाए हैं, पिक्सल में शेयर लगाए, सपोज करो ये अबव 51% से अबव है, तो ये क्या है, एक तरह की ग्रुप कंपनी है। ये क्या हुई, ग्रुप कंट्रोल किसके हाथ में है, एप्पल के, और ये क्या है, सब्सिडरी है, that is your group company। Remember that the augmented profit determines the due date, but the corporation tax liability always calculated on the company PTP, not on augmented profit। कि जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो किस में, प्रॉफिट पे निकालना है, ना कि उसके प्रॉफिट के या थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर नहीं निकालना है। The 1.5 million threshold may be need to be adjusted as follows। शॉर्ट AP वही आपको अगर ग्रुप है तो उसकी जो ये लिमिट है वो प्रोपोर्शनेट, हमको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा अगर आपका प्रॉफिट वो बिलो लेस देन 12 मंथ है, अगर आपका लेस देन 12 मंथ है तो। Just for understanding, Beach Limited has the following result for the 9 month ended। आपको क्लियर कट मेंशन है कि ये जो प्रॉफिट है कितने मंथ का है, 9 मंथ का है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम यूके कंपनी, अब इसमें ये नहीं बताया कि ग्रुप कंपनी है, अगर तो ग्रुप कंपनी है तो हम नहीं देते, क्योंकि नॉन ग्रुप कंपनी है तो हम क्या करेंगे, 330 प्लस डिविडेंड रिसीव 20,000 350
ये आ गया आपका टीटीपी, टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड लिमिट निकालनी है। 1.5 मिलियन को 9 मंथ के लिए निकालेंगे। 1.5 मिलियन का 1.125 मिलियन आ रहा है यहाँ पे ना। तो ये क्या है, बिलो द लिमिट है, ये बिलो लिमिट है, तो ये क्या है 350,000 ही है। तो इससे क्या है कि आपकी ड्यू डेट तो बनेगी जब आपका ईयर एंड हुआ। ईयर एंड आपका 31 मार्च को है, तो आप इससे लगा लिए 9 मंथ प्लस 1 डे को आपकी ड्यू डेट है, यानी कि आपकी 1 जनवरी तो या 2022 सॉरी या यहाँ पे 22 later 51% group company, two company are related 51 group company if कि अगर वो ग्रुप कंपनी क्यों है तो उसके लिए कंडीशनल है, वन इज अ 51% सब्सिडी ऑफ अदर, बोथ आर 51 सब्सिडी ऑफ थर्ड कंपनी। या तो क्या है कि एप्पल एंड पिक्सल वाले हमने एग्जांपल लिया, ये 51% शेयर है इनके पास होल्डिंग, और दूसरी क्या है एक लगाओ कौन सी ओप्पो, ओप्पो के पास भी क्या है 51%। तो इनके लिए ग्रुप कंपनी कौन सी हुई, एप्पल, कि ये एप्पल है, बाकी क्या है दोनों सब्सिडरी है। आपने ऑलरेडी F7 में कंसोलिडेशन पढ़ा होगा, तो उसके लिए आपको पता है ग्रुप कंपनी की कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब 51% सब्सिडरी वन मोर देन 50% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन। डायरेक्टली तो ये वाला मेथड है, इनडायरेक्टली क्या है, सपोज करो एप्पल देन पिक्सल देन ओप्पो। अब ओप्पो ने क्या किया 75% शेयर है, और सॉरी पिक्सल ने जो हायर किया है 75% ओप्पो के, ठीक है। तो 100 में से 75% और पिक्सल के क्या है 80% एप्पल ने हायर किए। करना क्या है देखो, हमें क्या करना है 80 को 0.75 से मल्टीप्लाई किया, तो जो एप्पल है वो इनडायरेक्टली तरीके से कितने इसे शेयर ऑन किए हैं 60%, इनडायरेक्टली वो अगर एग्जांपल दी है, एग्जांपल ऑफ ईच सिचुएशन, वन कंपनी इज 51% सब्सिडी और अदर वही एट लिमिटेड 100% है 70-50, बोथ 51 सब्सिडी ऑफ थर्ड कंपनी, वही चीजें दी हैं आपको। एट लिमिटेड हैज इफेक्टिव इंटरेस्ट इन टी लिमिटेड फॉर 56%, वही हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया इनको सिंपल। तो बोथ एस लिमिटेड एंड टी लिमिटेड आर 51 subsidiary of H Limited. The definition of related 51 company often abbreviated to 51% group company specially included. डॉर्मेंट कंपनी कौन सी है, जो अनऑपरेटिव है, यानी कि वो ऑपरेशन कंटिन्यू ऑपरेशन में नहीं है, या मतलब इनएक्टिव है, इनएक्टिव फॉर्म में, नॉन ट्रेडिंग होल्डिंग कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी कौन सी है, जो अनऑपरेटिव है, जो मतलब एक्टिव नहीं है, नॉट एक्टिव। The number of 51 group company in group per AP determined at the end of previous AP. Therefore, the company that joined the 51 group during the accounting period are deemed to be part of the group from the beginning of the following accounting period. कि जैसे ही आपने कंपनी को अगर बिग में भी ज्वाइन किया तो आप इसको क्या दोगे, बिगिनिंग ऑफ पीरियड में ही अपनी ग्रुप ऑफ कंपनी मानते हो, 51% ग्रुप कंपनी मानते हो। Companies that leave the 51% group during the accounting period are deemed to be still the part group until end of current accounting period. कि अगर कंपनी मिडिल में लीव हो जाती है, मतलब 51 से रिलीव हो जाते, तो भी आपको डीम्ड माना जाएगा until accounting period
एंड नहीं हो जाता आपका, राइट। If the two companies are over 50% owned by the individual, they are not 51% ग्रुप कंपनी। वही स्टिल है कि अगर आपकी टू कंपनी ओन्ड है 51%, तो आपकी स्टिल वो ग्रुप कंपनी नहीं मानी जाएगी। इफ द टू कंपनी आर ओवर 50% owned by individual, they are not 51 group company. Company can all be linked to a corporate parent company. टफ टू अंडरस्टैंडिंग 2 कि आगे आपको ग्रुप कंपनी के लिए वो दिया है ए लिमिटेड। और कंपनी एक्सपेक्ट जेट इनकॉर्पोरेशन a UK resident and prepare financial statement to 31st 2020 कि क्लियर कट मेंशन है कि जो जेड इनकॉर्पोरेशन है वो क्या है, ओवरसीज है। बाकी क्या क्या है, यूके रेजिडेंट एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 31st, ये आपका ईयर एंड आपको गिवन है। आपको बताना है कि स्टेट विच कंपनी आर 51% ग्रुप कंपनी ऑफ ए लिमिटेड, कि आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ ए लिमिटेड के ग्रुप के लिए बनाना है कि आपको 51% मिनिमम कौन सी होल्डिंग है। कैलकुलेट द प्रॉफिट थ्रेशोल्ड दैट विल अप्लाई इन डिटरमिनिंग वेदर ए लिमिटेड विल बी रिक्वायर्ड टू पे कॉर्पोरेशन टैक्स बाय इंस्टॉलमेंट बाय ईयर एंड 31st 2020, कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, थ्रेशोल्ड लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो हमें करना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है, ये तो हुई डायरेक्ट, ये हुआ डायरेक्ट। हमको क्लियर कट मेंशन है कि ए लिमिटेड के पास कौन कौन सी कंपनी है। ए लिमिटेड की ग्रुप में कौन कौन सी कंपनी आ रही है, एक तो आ रही है जेड लिमिटेड, इसके 51% शेयर है। दूसरा क्या है, बी लिमिटेड, ये 65% है। तो ये दो तो है ही है। आगे बी जेड लिमिटेड का जो है ये 100%, ये ओवरसीज है। ओवरसीज तो हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल किसके हाथ में है, 100% जेड लिमिटेड के हाथ में है। तो ये कहाँ पे है, कंट्रोल एंड मैनेज इन यूके, कि हम इसे भी लेंगे। तो जेड इनकॉर्पोरेशन भी हम कैलकुलेट करेंगे। 3 कंपनी होगी। दूसरा हमने बी लिमिटेड की 100%, हमें पता है वैसे तो ये ए का इनडायरेक्टली कितना बनता है, 65% बनता है इनडायरेक्टली 65, बट क्योंकि ये कंपनी क्या है, डोरमेंट है, ये अनएक्टिव है मतलब। और दूसरा क्या है, बी लिमिटेड का, वो डी लिमिटेड 60% बनता है, 60 प्लस इंटू मल्टीप्लाई करते हैं हम 60 30, ए लिमिटेड के कितने बने 39%, तो ये 51 ग्रुप में नहीं आएगा। तीसरा क्या है कि सी लिमिटेड अक्वायर्ड 1 दिसंबर 2020, कि ये मिडिल में अक्वायर किया गया। तो ये किसका वो है, तो ये क्या किया है, ये इन्होंने मिड ऑफ ये क्या किया है, मिड ये पीरियड हमारा स्टार्ट हो रहा था, ये ड्यूरिंग द पीरियड में अक्वायर है। तो ये कब ये एप्लीकेबल कब से होगा, 1 अप्रैल, यानी कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम 51 ग्रुप में लेंगे इसे, फ्रॉम ऑनवर्ड, कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में लेंगे। क्योंकि करंट ईयर में लिया तो हमारे पास कितनी कंपनी आएगी, ओनली 3 कंपनी जो है वो 51% ग्रुप में है। दैट्स इट। तो यही हमको बताना है। हमारे टेस्ट 2 ए लिमिटेड हैज 51% कंपनी, जेड लिमिटेड, जेड इनकॉर्पोरेशन, बी लिमिटेड। हमने ऑलरेडी जेड इनकॉर्पोरेशन है 51% ग्रुप कंपनी, इवन दो इट इज इनकॉर्पोरेटेड ओवरसीज है, बट ये हम कंट्रोल एंड मैनेज इन यूके, दैट्स इट। तो हम क्या लेंगे, 51% लेंगे। डी लिमिटेड नॉट अ 51 सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड ओनली ऑन 39%, 65 को 60 से मल्टीप्लाई किया
Now the D Limited is a 51 subsidiary of B Limited, but that is not relevant for this question. हमें क्योंकि क्वेश्चन में एक की ग्रुप कंपनी पूछा है. सी लिमिटेड डीम नॉट टू बी एबल 51% group member of a year and 31st March 2021. It is purchased during the year. It will include from 1st April 2021. कि हमने नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में लेंगे. ई लिमिटेड शुड फ्रॉम द बिगिनिंग 51% कंपनी इज डोरमेट थ्रू द अकाउंटिंग पीरियड. ये क्या है? नॉन एक्टिव है. नॉन एक्टिव है मतलब अनऑपरेटिव है. अनऑपरेटिव कंपनी है, तो इसलिए हम कंसीडर नहीं. एज ए लिमिटेड हैज 351 ग्रुप कंपनी, द प्रॉफिट थ्रेशोल्ड मस्ट बी डिवाइड बाय द 4 कंपनी. कि प्रॉफिट की जो थ्रेशोल्ड लिमिट को कितने से कर देंगे हम? डिवाइड बाय 4 करके ये थ्रेशोल्ड लिमिट वो डिवाइड कर देंगे. दिस मीन दैट ए लिमिटेड अगेन प्रॉफिट एक्सीड 375, इट विल बी रिक्वायर्ड टू पे इट्स कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी बाय क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट. कि हम इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को कितने डिवाइड 4 करके जो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट डिक्लाइन होके इतनी आ गई. अगर हमारा ए का प्रॉफिट, ए लिमिटेड का प्रॉफिट अगर 375 से अबव हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड हमें क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट टैक्स पे करना पड़ेगा. दैट्स इट. द कॉन्सिक्वेंस ऑफ 51 ग्रुप कंपनी. The consequence having a 51 group company are the 1.5 million threshold used to determine whether the company is a large for the purpose of paying corporation tax quarterly installment is divided by the total number of 51% group. लास्ट हमने क्वेश्चन में कितनी अपनी कंपनी बनी थी? टोटल 4 कंपनी बन रही थी. ए लिमिटेड जो थी पेरेंट थी, बाकी 3 क्या थी? ए लिमिटेड की 3 सब्सिडरी थी, आगे 3 सब्सिडरीज थी. तो हमारे पास टोटल कितनी 4 कंपनी आई. तो हमने थ्रेशोल्ड लिमिट को डिवाइड करके एवरेज निकाल लिया और उसके हिसाब से इसे कैलकुलेट किया कि ये लार्ज कंपनी है, ये स्मॉल कंपनी है, फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग द कॉर्पोरेशन टैक्स. क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट फॉर लार्ज कंपनी. इंस्टॉलमेंट पे लार्ज कंपनी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड इज देयरफॉर द नेसेसिटी फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस एन एक्यूरेट फोरकास्ट फॉर देयर करंट पीरियड टैक्स लायबिलिटी. कि हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी टैक्स लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? फोरकास्ट करना पड़ेगा. या हम क्या करेंगे? एस्टिमेट करेंगे. लाइक एडवांस, इंडिया में क्या है? लाइक एडवांस टैक्स. हम एडवांस टैक्स क्वार्टरली पे करते हैं ना, वैसा ही कंसेप्ट है. कंपनी विल बी नॉर्मली बी एबल टू ऑब्टेन अ रिफंड इफ दे आर सब्सिक्वेंट फाइंड दैट द इंस्टॉलमेंट हैव बीन ओवरपेड. कि अगर आपने कुछ एक्सेस पे कर दिया है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं. इंटरेस्ट विल बी चार्ज और पेड सी बिलो बेस्ड ऑन द एक्चुअल कॉर्पोरेशन टैक्स ड्यू फॉर द फाइनल टैक्स रिटर्न. कि जो इंटरेस्ट जो है वो किसके बेस पे होगा? आपके फाइनल टैक्स रिटर्न के बेस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं. फॉर 12 मंथ अकाउंटिंग पीरियड 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट आर ड्यू. कि जैसे ही 12 मंथ के लिए बाय द 40th डे ऑफ द मंथ 7, 10, 13, 16. अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट है सपोज करो अप्रैल से, अप्रैल है, अप्रैल टू आप 31st मार्च लो, है ना, 12 मंथ का पीरियड है. तो आपको क्या करना है? आपको करना है 7 मंथ अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. अक्टूबर पहली जो टैक्स ड्यू डेट है वो कौन सी है? 14 अक्टूबर. दूसरी क्या है? 3 महीने और लगा लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, देन 14 जनवरी, देन ऑनवर्ड. आगे आप अपने मंथ के हिसाब से कंटिन्यू कर दो. Inspection to installment for large company we do not have to pay the installment as follow. Company whose liability for the year is below 10,000 for pro rata amount if the accounting period is less than 12 months long. कि अगर आपकी जो लाइबिलिटी है वो 10,000 पाउंड से बिलो है तो आप कंपनी है बिकम लार्ज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. कि आप रिसेंटली मतलब करंट ईयर में लार्ज कंपनी वो डिक्लेयर हुए, लार्ज कंपनी बने हो. और थ्रेशोल्ड, आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट इसी साल से बढ़ी है,
They were not large for the previous accounting period and then argument profit of AP do not exceed 10 million कि आपका अगर आपका प्रॉफिट वो 10 मिलियन से exceed नहीं reduce according if they are related 51 group company और short AP कि आप अगर 51 ग्रुप कंपनी है तो भी चेक करने के लिए हमें रिड्यूस करना पड़ेगा अपने थ्रेशोल्ड लिमिट को. आई थिंक आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू फॉर लिसनिंग.